So in the previous lecture, we have gone through the gas chromatography, their derivatization. Today we are going to discuss about the ion exchange chromatography. Okay. So what is ion exchange chromatography? Basically, it is a reversible process. Okay. And what happens in this reversible process? The ions of the similar charge, are exchanged between the solid and the liquid. Okay. And the solid is known as the ion exchanger. And what are the other names for this ion exchange chromatography? Adsorption chromatography, basically a very useful and the popular method for separation of mixtures of various similar charges into the pure components. And it is also known as cation anion exchange chromatography. So don't get confused with the alternative names of the ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is also known as adsorption chromatography. Furthermore, it is also known as the cation anion exchange chromatography. And how the process it is? It is a reversible process. Okay. What happens in this reversible process? In this reversible process, the ions of the similar charge are exchanged between what? Solid and the liquid. The solid is known as the ion exchanger. The solid is known as the ion exchanger. Okay. क्या करने के लिए आए हैं हम? Okay. Thereafter, the definitions. So these are substances capable of exchanging of the ions, okay, with the electrolytic solution. So what are these? These are the substances capable of exchange of the ions with the electrolytic solutions. Okay. Now, basically, how the solid used here, the solid is known as the ion exchanger. So the ion exchanger, which is a solid, is porous in nature, okay, and it swells in water without dissolving in it, okay. And most common properties of the ion exchanger, which is known as the solid, are that, okay. तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं अपन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे है? इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. Second thing, complex in nature. Complex in nature means polymeric in nature. Third thing, they have the active or the counter ions, okay, that will exchange reversibly with the other ions in a surrounding solution without any substantial change in the material. Without any substantial change in the material. I repeat, what are the properties of the ion exchanger? Ion exchanger is also known as the solid. Okay, so they should be insoluble in water and the organic solvents. Okay, their nature should be complex. Complex means polymeric nature. Okay, thereafter, what they should have? They should have the active or the counter ions. Okay, that will exchange reversibly with the other ions in the surrounding solution without any substantial change in the material. Okay, so these are the properties expected for the ion exchanger. Now, types of the ion exchangers. So there are the three types of the ion exchanger. First is called as the resins. Second is called as the gel. Third is called as the inorganic exchanger. Okay. So let's see what is resins. Resins are basically amorphous in nature. Okay. And they are the amorphous particles of what? Organic materials. Okay. And what is the composition of this organic material? They contains polystyrene and the divinely benzene. Okay. Example is there before you. This is the styrene and the divinyl benzene. Okay. Polystyrene contains exchangeable functional groups and divinyl benzene contains cross-linking agents. Repeat it. This can be asked in your exams. Polystyrene contains what? Exchangeable functional groups. Divinyl benzene. This is called as the divinyl benzene. This is called as the divinyl benzene. And what it contains? It contains the cross-linking agents. Okay, are you getting what I am saying? I repeat, what are resins? Resins are amorphous in nature and they are basically amorphous particles. Amorphous particles of what? Amorphous particles of organic materials. Okay, and what is the composition of this resins? They contains polystyrene and divinely benzene. Example is the styrene and the divinyl benzene. Okay, now this polystyrene contains exchangeable functional groups. Divinyl benzene contains a cross-linking agent. What are the alternate names of the ion exchange chromatography? Adsorption chromatography and the cation anion exchange chromatography. Agree? Shall we proceed? Yes, sir. Thereafter,
And what they offer? They offer a potential mechanical stability. What they offer? They offer a potential mechanical stability. Mechanical stability infers adequate strength. Okay. Now we will see the classification of resins. Resins are classified as strong cation exchange resins, weak cation exchange resins, strong anion exchange resins, weak anion exchange resins. I repeat, first is the strong exchange anion resins, strong cation exchange resins, B is the weak cation exchange resins, C is the strong anion exchange resins, D is the weak anion exchange resins. Okay. Now the strong cation exchange resins, okay, what are they? We will see to it. These strong cation exchange resin is used for the separation of chromatographic separation of what? Amino acids, rare earth metals, and substances that contains sulfonic acid groups as the ionizable groups. Okay. I repeat, what are strong cation exchange resins? Okay. These are the type of the resins which are useful, okay, for the chromatographic separation of what? Amino acids, rare earths, and the other substances that contain sulfonic acid groups as the ionizable groups. Second thing, weak cation exchange resins. Okay, so the weak name indicate that they are based on the polymers. Okay, polymers of what? Methacrylic acid. Polymers of what? Methacrylic acid. And what they possess? They possess the carboxylic acid. What they possess? They possess the carboxylic acid. Third thing, strong anion exchange resins. These resins with the positively charged quaternary ammonium groups. Okay. Strong anion exchange resin contains the positively charged quaternary ammonium groups. Okay. And how they are linked? They are linked cross-linkedly. Okay. With the polystyrene frame. In the polystyrene frame. Okay. And they belong to this class. Which class? Strong anion exchange resins. Okay. Thereafter, trimethyl ammonium groups are also of this resins. Trimethyl ammonium groups are also of this resins. Okay. Thereafter, weak anion exchange resins. So tertiary amines resins are called as the weak anion exchange resins, and polyamine resins have the mixture of primary, secondary, and tertiary amine groups of the polystyrene network as well as. Okay. So strong anion exchange resins are basically positively charged quaternary ammonium salts, and these groups are attached to what? Cross-linked polystyrenes, okay, and framework, and they belong to this class. Trimethyl ammonium groups are used for this resins. Next thing is the weak anion exchange resins. So the tertiary amine resins and the polyamine resins, okay, having the mixture of primary, secondary, and tertiary amines groups. So they are attached to the polystyrene network as well. Okay, so these are the type of the resins. I hope this is clear to all of you. Yes. Yes, sir. Now the next, based upon their source, that was the chemical classification based upon their chemical classification, chemical nature. Now based upon their source, how the resins are classified. So natural source, synthetic source. नेचुरल सोर्स में आएगा कैटायंस, एनायंस. कैटायंस में कौन से आएंगे? जियोलाइट्स, क्ले. एनायंस में डोलोमाइट. Synthetic sources, they are inorganic resins. B, organic resins, most widely used. Structural type of the ion exchange resins. So now based upon their structural structure, they are classified as pellicular and porous type of the exchanger beads. Okay, so pellicular type with the ion exchange resins. Okay, so they are having the particle size of around 30 to 40 mm with 1 to mm film thickness. Okay, they have very low ion exchange capacity. Okay, for separation of the ions. Their ion exchange efficiency is around 0.01 to 0.1 milliequivalent per grams of the ion exchange capacity. Furthermore, the porous resin coated with the exchanger beads. This is the classification of the structural type of the ion exchange resins. So the particle size range is around 5 to 10 meters. Okay, basically they are totally porous in nature, highly efficient. Their exchange capacity is around 0.5 to 2 milliequivalent per gram of the ion exchange resins.
So these are the things. Now, third classification of the resins based upon the structural macroreticular resin bed. Okay. So this reticular network of the resin is seen specifically on the resin beads. Macro means they are not highly efficient. Okay. Macro means larger particles, so they are not highly efficient and have very low in the ion exchange capacity. Furthermore, surface sulfonated thermostatically bonded with the anions, so it is less efficient and also has less exchangeable capacity, and they also have the less exchangeable capacity. Agree? Yes, sir. Now you can see this ion exchange film. Okay, in the first inner core, anion exchange resin beads, active capacity. These are the macro pores, not efficient ones. And these are the surface sulfonated thermostatically bonded anions. Now, properties of the ion exchange resins. So basically, they are chemically stable. Okay. Insoluble. Okay. Sufficiently hydrophilic nature. Sufficient degree of cross-linking should be there. Resins must be denser than the water. They must contain sufficient number of the ion exchange groups. What they should contain? They should be chemically stable, insoluble in common solvents, sufficiently hydrophilic, sufficient degree of the cross-linking should be there. Swollen resin must be denser than the water. Thereafter, they should contain sufficient number of the ion exchange groups. So here completes our resins. Now we are moving toward the another classification of the gels. Is it okay with all of you? Is it okay with all of you? Okay. Can we proceed? Hello. Can we proceed? Yes, sir. Okay. Now the gels. What is the function of gels? The ion exchange gels, they are basically used for separation. Separation of what? Larger molecules. Example, proteins, nucleic acids. Gels are softer in nature than the polystyrene resins. Polystyrene resins से ये softer nature के होते हैं. डेक्स्ट्रॉन और उसके रिलेटिव्स को उनका फन क्या बोलते हैं? जेल्स बोलते हैं. एमसीक्यू में आ सकता है. डेक्स्ट्रॉन एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड एज जेल्स. Cellulose dextrans are ion exchangers, which are polymers of sugar glucose. And what they possess? They possess the large pore size and lower change densities. Large pore size होता है और lower charge density होती है. What are gels? Gels are used for what? Separation. Separation of what? Larger molecules. Example, proteins, nucleic acids. They are softer than the polystyrene resins. Dextron and its relatives are basically called as the gels. Cellulose and dextran ion exchangers are the polymers of the sugar glucose, possess large pore size and lower charge densities. Now, inorganic ion exchangers. Okay. So basically, inorganic ion exchangers are the combos. Combos of what? Hydrous oxides of highly charged ions with the oxides more acidic than the other have been found to have ion exchange properties. Okay. Now the amorphous precipitates are having the higher exchange capacity than the crystalline compounds. The reason behind this is the greater surface area of the former. Former means higher exchange capacities. Okay, type of the compounds. Example, titanium arsenic. Okay, and what it is used? It is used to absorb the alkaloids, hydrous antimony, peroxides, etc. Okay. Furthermore, now what is the use of this? They are used to study the
exchange equilibrium of what? K and Rb ions with the hydrogen and the other ions. K is the constant. Okay. Are you getting what I am saying? Hello. Hello. Are you getting what I am saying? Are you listening what I am saying? Are you listening what I am saying? Yes, Yes. sir. Now what is K? K is the constant parameter that reflects the binding force or the selectivity of the ion exchange. Are you getting what I am saying? And what is Rb? Rb is a alkali metal. Rb is a alkali metal. Are you getting what I am saying? With the hydrogen and the other ions. Now mechanism of the ion exchange process. Okay. So first thing we should be knowing that it is a reversible process. And not only reversible, but also reversible exchange. Reversible exchange of what? Ions. Okay. Between which ions? Between the ions present in the solution and those present in the ion exchange resins. Okay. Now the ion exchange separations are basically carried out in the columns packed with the ion exchanger. There are two types of the ion exchangers. First is the cationic exchanger and ionic exchanger. Okay. Cationic means negatively charged, and what they will attract? Positively charged groups. Okay. Exchangers are basically acidic in nature. Exchangers are basically acidic in nature, and what they exhibit? They exhibit, since their negative charges result from the proteolysis of the acidic groups. Proteolysis of the acidic groups. Example of the cation exchange resin is the S resin, S cationic resin. S means sulfur containing sulfate derivatives, CM resins, okay, and the carboxylate derivative ions, I hope this is clear to all of you. Can we proceed? Yes. Yes, sir. Anionic exchange resins. The previous one was negatively charged, so this one is positively charged. And whom they will attract? They will attract the negatively charged ion molecules. Okay, they are basically termed as the basic ion exchange, since positively charged generally exceeds the separation of protons. Separation of protons with what? With the basic groups. And how this happens? This happens because of the affinity. So based upon their affinity of the ions toward the matrix ions, the cations and the anions are separated. Furthermore, the ions have the less affinity toward matrices. They will elute first. जिनकी affinity कम रहेंगी वो elute first हो जाएंगे. The ions having the affinity more, okay, toward the matrices, they will elute later. Okay, example before you is there. Q anion exchange resin, DEAE anion exchange resins. Okay. Now, what is DEAE anion exchange resin? What is the full form of this DEAE anion exchange resin? Diethyl aminoethyl cellulose. Okay. Diethyl aminoethyl cellulose anion exchange resins. Are you getting what I am saying? And Q resin is the quaternary amines. Okay. Now the actual ion exchange mechanism is thought to be composed of the 5 distinct steps. 5 steps में आता है ये. पहला स्टेप में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा आयंस का एक्सचेंजर सरफेस पे, और ये क्विक होगा होमोजेनस अगर सॉल्यूशन है तो. सेकंड थिंग क्या होगा? डिफ्यूजन होगा आयंस का कहाँ पे? मैट्रिक्स से
एक्सचेंजर साइड पे, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज पे, किसके बीच में, एक्सचेंजर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के बीच में। थर्ड थिंग क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, कहाँ पे होगा, एक्सचेंज साइट ऑकर, एक्सचेंज साइट पे होगा ये, और ये इंस्टेंटेनियस होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, रेजीन्स SO3, फिर सोडियम रेजीन्स SO3NaH+, रेजीन्स NCH3OH, और फिर Cl-, फिर Cl इससे अटैच हो जाएगा, OH- बाहर निकल जाएगा। फोर्थ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, किसका, एक्सचेंज आयंस का, एक्सचेंजर टू सरफेस पे। फिफ्थ में क्या होगा, सिलेक्टिव डिसॉर्प्शन होगा, किसका, इलुएंट का, एंड डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू व्हाट, एक्सटर्नल सरफेस सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। मैं रिपीट करता हूं, 5 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। पहला मैकेनिज्म क्या है, डिफ्यूजन होगा आयंस का एक्सचेंजर सरफेस पे, और ये बहुत फास्ट होगा, होमोजेनस सॉल्यूशन है तो। सेकंड थिंग क्या होगा, डिफ्यूजन होगा आयंस का, कहां से, मैट्रिक्स से एक्सचेंजर साइड पे, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज कैसा है, एक्सचेंजर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। थर्ड थिंग क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा एक्सचेंजर साइड पे, इंस्टेंटेनियस होगा, आपके सामने रिएक्शन दी हुई है। फोर्थ थिंग क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द एक्सचेंज आयंस होगा एक्सचेंजर से सरफेस पे। फिफ्थ थिंग क्या होगा, सिलेक्टिव डिसॉर्प्शन होगा, इलुएंट एंड डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। समझा आपको, हैव यू गॉट इट, हेलो, हैव यू गॉट इट। Yes, sir. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। सो इसमें पहला क्या है, नेचर रहेगा, नेचर किसका, आयन एक्सचेंज रेजीन्स का, ठीक है ना। नेचर अगर आयन एक्सचेंज रेजिन है तो क्रॉस लिंकेज को पहले देखेगा, स्वेलिंग को देखेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा क्या, प्रपोर्शन ऑफ द क्रॉस लिंकिंग को, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, डायविनाइल बेंजीन्स एंड द पॉलीस्टाइरीन्स, ठीक है ना। अगर क्रॉस लिंकिंग एजेंट कैसा है, रिजिड है बहुत, और स्वेलिंग कम हो रही है उसमें, ठीक है ना, सो वो पास नहीं होगा, दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स प्रेजेंट, एंड इट बिकम सिलेक्टिव टू द आयंस, सिलेक्टिव बन जाएगा आयंस के लिए डिफरेंट साइज के। जहां पे लेस क्रॉस लिंकिंग एजेंट प्रेजेंट रहेगा वहां पे रिजिड रहेंगे, पर ये स्वेल भी ज्यादा होंगे। मैं रिपीट करता हूं, जब ज्यादा क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स रहेंगे और वो रिजिड रहेंगे तो स्वेल लेस होंगे, ठीक है ना। स्वेलिंग लेस होंगी तो सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट साइजेस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो पास नहीं हो पाएगा पोर्स के थ्रू, ठीक है ना। और वो सिलेक्टिव बन जाएगा फॉर द आयंस ऑफ द डिफरेंट साइजेस। जब लेस क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स को प्रेजेंट रहेंगे तो वो रिजिड हो जाएगा और स्वेल ज्यादा होगा। और जब स्वेलिंग ज्यादा होंगी तो सेपरेशन एफिशिएंट नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डू नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू द वाइड पोर्स, बड़े बड़े पोर्स होने की वजह से वो एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके बाद में ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, किसमें, पॉलीमेरिक आयन एक्सचेंज में, फॉर द सेपरेशन टू बी इफेक्टिव, सेपरेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो। ये समझा आपको, नेचर ऑफ आयन एक्सचेंज एंड रेजिन्स। ये समझा आपको, नेचर ऑफ आयन एक्सचेंज एंड रेजिन्स। प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, यस, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट बेटा। देयर आफ्टर द नेचर ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंजिंग आयंस, उसमें वैलेंस ही रहेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, तो एक्सटेंट ऑफ आयन एक्सचेंज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होगा वैलेंसी में। सोडियम उससे कम कैल्शियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम थोरियम। सेकेंड, साइज ऑफ आयंस, सिमिलर चार्ज आयंस है, एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज क्या रहेगा, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस। लिथियम उससे कम हाइड्रोजन, सोडियम NH4। पोलराइजेबिलिटी है, तो को एक्सचेंज बोला कब कि प्रेफर किसका होगा, प्रेजेंट जब था। ग्रेटर पोलराइजेबल आयंस होंगे। तो आयोडीन इसका एग्जांपल है, उससे कम ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन सॉल्यूशन, बैठेगा कितने तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पॉलीवेलेंट एनायंस के होंगे, जनरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्रेफरेंशियली।
उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज आयंस रहेगा, तो उसमें रेजिन्स अगर हायर पॉजिटिव चार्ज पे रहेंगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक्सचेंज कैसे फेवर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। रेजिन्स में अगर लोअर पॉजिटिव चार्ज है तो सॉल्यूशंस में क्या रहेंगे, हायर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और एक्सचेंज फेवर कब होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। नेचर मार्क ऑफ आएगा। एक्सचेंजिंग रेजिन। 22PS04, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग रेजिन फिर से बताता हूं। वैलेंसी ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन लो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक्सचेंज ऑफ रेजिन्स इंक्रीज होगा जैसे वैलेंसी इंक्रीज होगी। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, थोरियम। साइज ऑफ आयन, सिमिलर चार्ज आयंस है, एक्सचेंज इंक्रीज होगा जैसे डिक्रीज होगा साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस के साथ। लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम एंड अमोनियम। पोलराइजेबिलिटी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, प्रिफर्ड होगा फॉर ग्रेटर पोलराइजेबल आयंस, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। फिर पोलराइजेबिलिटी में क्या होगा, एक्सचेंज प्रिफर्ड होगा किसके लिए, ग्रेटर पोलराइजेबल आयंस के लिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पॉलीवैलेंट आयंस रहेंगे, वो जनरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्रेफरेंशियली। कॉन्सेंट्रेशन एंड चार्ज ऑफ आयंस में क्या होगा, अगर रेजिन्स हायर पॉजिटिव चार्ज पे रहेंगे, सॉल्यूशंस लोअर पॉजिटिव चार्ज पे रहेंगे। एक्सचेंज कैसे फेवर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तब फेवर होगा। रेजिन्स जब लोअर पॉजिटिव चार्ज पे रहेंगे तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हायर पॉजिटिव चार्ज पे रहेगा, और एक्सचेंज फेवर कहाँ होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। एग्री? ओके विथ ऑल ऑफ यू? अरे ओके विथ ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाउ मेथडोलॉजी फॉर आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है ना। ये देखिए, ये कॉलम है, इसको बोलते हैं इल्यूशन कॉलम्स, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज निगेटिव मॉलिक्यूल्स है ऊपर में, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज जेल बीड्स है, ठीक है ना, DEAE सेलुलोज के, डाइथाइल अमाइनो इथाइल सेलुलोज के, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड हो रहे हैं लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे, यहाँ जो बाउंड प्रोटीन्स है ये इल्यूट हो रहे हैं हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे। एग्री? एग्री? Agreed, sir. ओके। कॉलम, कॉलम्स किसके बने हुए रहते हैं, यहाँ पे ग्लास के बने हुए रहते हैं। इंडस्ट्रीज में इसमें हायर क्वालिटी स्टेनलेस स्टील या फिर पॉलीमर के बने हुए रहते हैं, और रेजिस्टेंट रहते हैं किसके लिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए और अल्कलीज के लिए। अब ज्योमेट्री कॉलम की किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेपरेशन फैक्टर पे। सेपरेशन कैसे इंक्रीज होगा, जब आप लेंथ को एक बार इंक्रीज तक करेंगे कॉलम की। एक सेपरेशन कैसे इंक्रीज होगा, जब आप कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। पर लेंथ कॉलम की आप ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते क्रिटिकल लेंथ के ऊपर। एग्री? उसके बाद में फिर जो डायमेंशन ऑफ कॉलम रहेगा वो कितना रहेगा, 20:1 to 100:1 फॉर द हायर एफिशिएंसी कैन बी यूज्ड। थर्ड थिंग है पैकिंग ऑफ कॉलम, इसमें वेट पैकिंग ज्यादा यूज की जाती है। रेजिन्स को मिक्स किया जाता है मोबाइल फेस के साथ में, और पैक किया जाता है कॉलम के साथ में यूनिफॉर्मली। एग्री? हेलो, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. इसके बाद में सैंपल, जो सैंपल रहेंगे उसको सेपरेट करेंगे, आप डिसॉल्व करेंगे मोबाइल फेस पे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑल एट वंस इनटू द कॉलम। फिर एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पैकिंग कॉलम लेंगे, ठीक है। जब आपने कॉलम को पैक कर दिया है, फिर सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम, फिर उसको अलाउ करेंगे, पास करेंगे थ्रू द बेड ऑफ द आयन एक्सचेंजर्स, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पस यहाँ पे आप सिरिंज या फिर पिपेट को यूज करते हैं। एग्री? फिर जो मोबाइल फेज है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें लेस यूजफुल होते हैं, आजकल ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स होती है, अल्कलीज होती है, बफर्स होती है इल्यूटिंग सॉल्वेंट की, जैसे 0.1 नॉर्मल, HCl, NaOH, फॉस्फेट बफर, एसिटेट बफर्स, बोरेट बफर्स,
थैलेट बफर्स, उनको यूज किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद में जो डेवलपमेंट होता है क्रोमेटोग्राम का और इल्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। आपने यहाँ पे सैंपल इंट्रोड्यूस किया, क्रोमेटोग्राम डेवलप हुआ, और उसके बाद में द क्रोमेटोग्राम इज डन बाय यूजिंग द डिफरेंट मोबाइल फेजेस, ठीक है ना। उसके बाद में जो एक्वियस सॉल्ट रहता है उसको आप एडजस्ट करते हो कांस्टेंट आयोनिक स्ट्रेंथ तक। फिर जो चॉइस ऑफ द मोबाइल फेज रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, रेजिन की सिलेक्टिविटी पे, ठीक है ना, फॉर द सॉल्यूट आयंस। उसमें अभी दो टेक्निक्स यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। पहला वाला रहता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक, सेकेंड रहती है ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक। आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक में क्या करते हो, सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन को यूज करते हो, सेम स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड अल्कली को यूज करते हो, ठीक है ना, और बफर को यूज करते हो। और जो ग्रेडियंट इल्यूशन होता है उसमें लेस एसिडिक बेसिक मॉलिक्यूल को यूज करते हो, एसिडिटी और बेसिसिटी इंक्रीज होती है रेगुलर इंटरवल पे। उसके बाद में साथ में जो डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं इल्यूशन के, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, वो कलेक्ट करते हैं आप वॉल्यूम वाइज या फिर टाइम वाइज और एनालाइज करते हैं उसको। आई होप दिस इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। इफ यू वांट मी आई Yes, कैन sir. रिपीट इट। ओके, एनालिसिस ऑफ द एल्यूट और द डिटेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट फ्रैक्शंस को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम और द गैस, वॉल्यूम और द टाइम एनालाइज्ड। इसमें जितनी भी एनालिसिस मेथड्स होती है किसके ऊपर डिपेंड होती है, नेचर और क्वांटिटी आयनिक स्पीसीज की कैसी है। फिर फर्दर मोर क्या कर सकते हो, कंडक्टोमेट्री कर सकते हो, एम्पेरोमेट्री कर सकते हो, फ्लेम फोटोमेट्री कर सकते हो, पोलैरोग्राफी कर सकते हो। एग्री? ओके, ओके विथ ऑल ऑफ यू, ओके विथ ऑल ऑफ यू। Okay, sir. हेलो, ओके विथ ऑल ऑफ यू, हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट बेटा? हेलो, हैव यू गॉट इट? Yes, sir. फिर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हो, रेडियो केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हो जिसमें गीगल मुलर काउंटर होता है, पीआईसी में पढ़े अपन ने गीगल मुलर काउंटर। आयनाइजेशन चेम्बर भी यूज कर सकते हो। अब रीजनरेशन कैसे करोगे आयन एक्सचेंज रेजिन्स का? आयन एक्सचेंज रेजिन जब सेपरेशन मे नॉट बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट सेपरेशन, तो एक्सचेंज फंक्शनल ग्रुप्स आर लॉस्ट। जितने भी एक्सचेंज फंक्शनल ग्रुप रहते हैं ना वो लॉस हो जाते हैं ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ द आयन एक्सचेंज रेसिन्स, ठीक है ना। उनको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए उनका रीएक्टिवेशन रीजनरेशन ऑफ द रेजिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका मतलब क्या, रीएक्टिवेशन रीजनरेशन का मतलब क्या, यहाँ इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट करने का। रिप्लेसमेंट किसका, एक्सचेंजेबल कैटायंस का, एनायंस का, जो कि प्रेजेंट है रेजिन्स में। फिर चार्जिंग करने का कॉलम की किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, मिनरल एसिड HCl, ठीक है ना, फॉर रीजनरेशन of the cation exchange resins, while strong alkali like sodium hydroxide or the potassium hydroxide used for the regeneration of the cation exchange resins. Thereafter applications, application क्या है इसका, आपका जो फिल्टर रहता है ना, कैंटारो बोलते हैं वही। सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस। इनको रिमूव करोगे बाय पासिंग थ्रू द हार्ड वाटर to the cationic exchangers charged with the sodium ions. सेकेंड, कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन करोगे वाटर का, उसमें क्या होगा, कंप्लीट रिमूवल करूंगा आयंस का, वाटर को पास करूंगे एसिडिक कैटायन एक्सचेंज रेजोनेंस से, एक्सचेंजर से। फिर जो मेटालिक कैटायंस है वो एक्सचेंज हो जाएंगे H+ आयंस के साथ में। थर्ड थिंग, प्यूरिफिकेशन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। इसमें मोस्टली कहाँ काम आता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे वाटर के साथ में, तो उसमें क्या फाउंड अप होता है कि बहुत सारे आयन जो रहते हैं ओरिजिनली प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, ठीक है ना। तो ये आयंस को आपको रिमूव करोगे बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये एप्लीकेशन है इसका। फिर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स है। सो आयन एक्सचेंज मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द complex mixture of 18 amino acids obtained by the acid hydrolysis of the proteins. Thereafter,
प्यूरिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, तो प्रोसेस किस लिए यूज होता है? प्यूरिफिकेशन और रिकवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स, विटामिन, अल्केलॉइड्स, हार्मोन्स, ठीक है ना, और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर बायोकेमिकल सेपरेशंस में क्या यूज करोगे? तो बायोकेमिकल सेपरेशंस में आपको अगर कुछ ड्रग का एनालिसिस करना है, मेटाबोलाइट्स निकालना है, ठीक है ना, ब्लड सैंपल का एनालिसिस करना है, यूरिन सैंपल का एनालिसिस करना है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का एनालिसिस करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द बायोकेमिकल सेपरेशन। अदर एप्लीकेशंस में क्या होता है, बहुत सारे वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिकल फॉर्मुलेशन में, उनका मेजरमेंट करना है, आयन एक्सचेंज रेजिन इज द सॉल्यूशन। फिर मेजरमेंट करना है ड्रग्स का, मेटाबोलाइट्स का, सीरम में, यूरिन में, फॉर रेसिड्यू एनालिसिस इन द फूड रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मेजरमेंट करने का एडिटिव्स का, सच एज विटामिन को एंड प्रिजर्वेटिव्स को फूड एंड बेवरेजेस में, देन अगेन द आयन एक्सचेंज रेजिन इज द सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ion exchange chromatography, also known as absorption chromatography, cation anion exchange chromatography. Okay with all of you? Yes, sir. Now gel chromatography. Gel we have completed with the ion exchange. Now we will see the gel chromatography. So gel chromatography is also known as, what are the alternate names? Gel permeation chromatography, exchange chromatography, molecular sieve chromatography. Okay. What are the advantages? Simple, reliable method. For what? Separation of molecules according to their sizes. So what it uses? It uses the porous materials as a stationary phase, liquid as the mobile phase. तो जो diameter रहता है porous material का, it is around 50 to 300 Armstrongs, which is similar to the size of many molecules. फिर जो molecule रहेगा वो penetrate करेगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा पोर्स में अकॉर्डिंग टू देयर साइज। स्मॉल मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट करेंगे मोर रैपिडली देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब जो रिजल्ट रहेगा, डिफरेंस इन द रेट एट विच द मॉलिक्यूल पास डाउन थ्रू द कॉलम। स्मॉलर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे फास्ट और लार्जर मॉलिक्यूल्स विल ट्रेवल स्लोली, और फिर वो उनका क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। नाउ प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या करते हो आप? मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है, उसको आप मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके उसको आप डिसॉल्व करोगे, ठीक है ना, लिक्विड में। लिक्विड मींस व्हाट? मोबाइल फेस पे उसको अप्लाई करोगे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को। उसमें क्या रहता है? क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में सॉलिड सपोर्ट रहता है, किसके फॉर्म में? माइक्रोस्कोपिक स्पीयर्स के फॉर्म में। माइक्रोस्कोपिक स्पीयर्स यानी क्या रहते हैं? उसके अंदर बीड्स रहते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं जिसको अपन। फिर जो मास ऑफ बीड रहता है विद इन द कॉलम, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम बेड बोलते हैं। सो बीड्स यहाँ पे क्या काम करते हैं? ट्रैप का काम करते हैं या फिर सीव्स का काम करते हैं, ठीक है ना। उनका फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करने का। किसको? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, जो टेम्परेली ट्रैप्ड हो जाते हैं विद इन द पोर्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? पास होंगे अराउंड और वो एक्सक्लूड हो जाते हैं फ्रॉम द बीड्स। फिर जो लार्जर सैंपल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे कैन नॉट और कैन ओनली पार्शियली पेनिट्रेट करेंगे पोर्स को, whereas smaller molecules can access most of the all pores. Larger molecule elute first होंगे, smaller molecule elute later होंगे। और जो molecules can access all the pores elute from the column, particles of the different sizes will elute, ठीक है ना, through the stationary phase at different rates. I repeat principle को। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, उनको डिसॉल्व करेंगे आप लिक्विड में, मोबाइल फेज में, उसको अप्लाई करेंगे क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, जिसमें एक सॉलिड सपोर्ट रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा वो सॉलिड सपोर्ट? माइक्रोस्कोपिक स्पीयर या फिर बीड्स के फॉर्म में रहेगा। उसी को हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। जो मास ऑफ द बीड्स रहेगा कॉलम का, उसको अपन कॉलम बेड बोलते हैं। ये बीड ट्रैप या फिर सीव्स का काम करेगा। उसका फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करने का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जो टेम्परली ट्रैप्ड हो जाते हैं पोर्स में। लार्जर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास होंगे अराउंड द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीड्स। फिर जो लार्जर सैंपल्स रहेंगे जो पास नहीं हो सकते वो पार्शियली पेनिट्रेट हो जाएंगे पोर्स में। उसके बाद में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे कैन एक्सेस मोस्ट ऑफ द ऑल पोर्स।
फिर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इल्यूट फर्स्ट हो जाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाद में लेटरली इल्यूट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे दे कैन एक्सेस ऑल द पोर्स, इल्यूट लास्ट फ्रॉम द कॉलम, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द साइज विल इल्यूट फिल्टर through the stationary phase at different rates. Agree? Yes, sir. What is the other name for gel chromatography? Gel permeation chromatography, exclusion chromatography, molecular sieve chromatography. ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Now you can see the four columns. ये स्मॉल पेनिट्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर में, ठीक है ना. ये पोरस जेल है. ये क्या है? स्मॉल परमिएशन मॉलिक्यूल्स है, पेनिट्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर में. फिर ये पोरस जेल पोर्स है, A B C D है. फिर सॉल्वेंट फ्लो है बता रहा है ये, ठीक है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? लार्ज मॉलिक्यूल्स इल्यूट फर्स्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना. अब क्रोमेटोग्राम निकलेगा. यहाँ पे ऊपर में क्या है? सॉल्ट है. लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना. स्मॉलर पोर्शंस ऑफ द जेल पोर साइज है. ये रिटेंशन टाइम्स दिखेंगे फिर आपको. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हेलो, ये बनाना है आपको, हाँ? इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? इज इट ओके Yes, sir. विथ ऑल ऑफ यू? Unmute yourself and please tell me, or you want me to repeat? I'll repeat it. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. We will proceed now. Now theory. So how this happens? So now the total volume of the column packed with the gels have been swelled, ठीक है ना. और स्वेल कौन करता है उसको? वाटर करता है, ठीक है ना. उसके बाद में जो दूसरे सॉल्वेंट्स रहते हैं, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन, this equation. Vt is equivalent to Vg Vl plus V0. Vt means total bed volume, Vg means volume occupied by the solid matrix of the gel, Vl means volume of the solvent held in the pores of the intersites, and V0 is the free volume outside the gel pores. देखो, volume of column packed with the gel is given by the equation Vt is equal to Vg Vl plus V0. Vt में क्या होता है? टोटल बेड वॉल्यूम. Vg यानी क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड मैट्रिक्स जेल, मैट्रिक्स ऑफ द जेल. Vl वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट हेल्ड इन द पोर्स और द इंटरस्टाइसेस. V0 क्या होता है? फ्री वॉल्यूम आउटसाइड द जेल कंडीशंस. ओके. अगर कंडीशंस को आप एज्यूम करते हैं सच एज द टाइम टेकन फॉर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज इनटू द पोर, इट इज कंपेयर्ड. ये बार बार पॉपअप मैसेजेस, प्लीज डोंट डू दैट. If the condition is assumed such that the time taken for the solid molecules to diffuse into the pore is less compared to the time spent by the molecule near the pores, separation would be independent of the diffusions, then these conditions will be there. इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन एज्यूम किया हुआ है और सॉलिड मॉलिक्यूल्स और डिफ्यूज करता है पोर्स को इज लेस कंपेयर टू द टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल्स नियर द पोर. सेपरेशन प्रोसेस कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है डिफ्यूजन प्रोसेस से. फिर क्या दिया जाता है? एक इक्वेशन है Ve इज इक्वल टू V0 प्लस KD इंटू VL. अब Ve क्या होता है? एफ्लुएंट वॉल्यूम होता है, जो फ्लो होता है कॉलम के थ्रू बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द सैंपल एंड इंजेक्शंस एंड द सैंपल इमर्जेंस फ्रॉम द कॉलम. केडी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है. लार्जर मॉलिक्यूल्स है, केडी इज इक्वल टू क्या होता है? 0 रहेगा. सो Ve इज इक्वल टू V0 होगा. और मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट होंगे, केडी इज इक्वल टू 1, Ve इज इक्वल टू V0 प्लस 1 के हिसाब से. एग्री? ओके. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir.
अब इंस्ट्रूमेंटेशन देखो, यहाँ पे क्या है, देखो अच्छे से देख लो। यहाँ मोबाइल फेज है, ये सॉल्वेंट डिलीवरी पंप है, सैंपल इंजेक्टर है, यहाँ पे सैंपल इसको इंजेक्ट करोगे आप, यहाँ से किसी जेल परमिएशन कॉलम में जाएगा, डिटेक्टर में जाएगा, फिर क्रोमेटोग्राम बनेगा। फिर इसके बाद में जो स्टेशनरी फेज रहेंगी वो सेमी परमिएबल रहेंगी, पोरस बीड्स रहेंगे, वेल डिफाइंड रेंज ऑफ द पोर्स रहेंगे। बीड्स क्या रहेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स रहेंगे, स्मॉल पोर साइज रहेगा, रैपिड डीलिंग रहेंगे विद द प्रोटीन्स, और फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इमीडिएट पोर साइज रहेगा दैट विल सेपरेट रिलेटिवली टू द प्रोटीन्स, वेरी लार्ज पोर साइज रहेगा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेशनरी फेज किस लिए यूज होता है, जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के लिए, और उसके एग्जांपल कौन से, डेक्स्ट्रान है, पॉलीएक्रिलामाइड है, डेक्स्ट्रान पॉलीएक्रिलामाइड है। अब जेल बिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, केमिकली इनर्ट रहना चाहिए, मैकेनिकली स्टेबल रहना चाहिए, उसके बाद में आइडियल होना चाहिए होमोजेनस पोर स्ट्रक्चर के लिए, वाइड पोर साइज के लिए, लो सॉल्यूशंस के लिए, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स और पोर साइज रहना चाहिए, पोर साइज ऑफ द जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। मोबाइल फेज में क्या रहेगा, इसमें ये लिक्विड रहेगा जो डिसॉल्व करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को टू मेक द मोबाइल फेस परमिटिंग द हायर डिटेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है ना, वेट पैकिंग सरफेस रहेंगे। तो जो चॉइस ऑफ द मोबाइल फेस यूज फॉर द सेपरेशन वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, टाइप ऑफ द सेपरेशन दैट हैज टू बी अचीव्ड एंड कंपोनेंट दैट हैज टू बी सेपरेटेड। मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो पॉलीमर के लिए यूज किया जाता है दैट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, वो कौन से है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्लोरोफॉर्म, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। कॉलम, कॉलम किसका बना हुआ रहता है, स्ट्रेट ट्यूब रहता है बेड सपोर्ट के ऊपर में एट द बॉटम। बेड सपोर्ट क्या करता है, अलाउ करता है लिक्विड को जो पास होगा थ्रू विदाउट डिस्टर्बिंग द बेड मटेरियल। सिंपलेस्ट कॉलम में क्या रहेगा, स्ट्रेट ट्यूब रहेगा, उसमें कुछ ग्लास वूल लगा रहेगा, और जो ग्लास वूल रहेगा वो कवर्ड रहेगा विद द थिन लेयर ऑफ द क्वार्ट्ज, थिन लेयर ऑफ द क्वार्ट्ज या फिर ग्लास बीड्स के साथ में। कमर्शियली अवेलेबल कॉलम्स कैसे रहेंगे, एनालिटिकल कॉलम का साइज कितना रहेगा, 7.5 to 8 mm का साइज रहेगा। प्रिपरेटिव कॉलम का साइज कितना रहेगा, 22 to 25 mm का रहेगा। यूजुअली कॉलम लेंथ कितनी रहेंगी, 25, 30, 50 और 60 सेंटीमीटर की रहेगी। रिसेंटली यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं अपन, नैरो बोर कॉलम, जिसका डायमीटर कितना होता है, 2 to 3 mm का होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, विच सेव्स टाइम और सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को। पंप क्या होता है, हायर कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करता है थ्रू आउट द एंटायर कॉलम, ठीक है ना। फिर अगर चेंज ऑफ द फ्लो रेट कितना है, 0.1% है, उसके वजह से क्या होगा, एरर आएगा मोलर मास में, या फिर अप टू 10% तक, ठीक है ना। उसके बाद में मोस्ट ऑफ द जो भी पंप रहते हैं ये रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट देते हैं, कितना देते हैं, 0.2 to 0.3% का देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये सब एमसीक्यूज में आ सकता है। इनलाइन फिल्टर्स में जितने भी सॉल्वेंट रिजर्वायर रहेंगे ये क्या प्रिवेंट करते हैं, पार्टिकल्स को फ्रॉम कमिंग इनटू द पंप हेड्स विच माइट डैमेज द चेक वाल्व एंड द पंप सील्स, ठीक है ना। इसमें वेरियस पंप्स कौन से यूज किए जाते हैं, सीरींज पंप मोस्टली यूज किया जाता है, या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है। लास्ट है डिटेक्टर। डिटेक्टर में दो टाइप के डिटेक्टर यूज किए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर यूज किया जाता है, मोलर मास सेंसिटिव डिटेक्टर यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सेंसिटिव डिटेक्टर में आता है बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर आता है, सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर आता है। बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर बोला तो कौन सा डिटेक्टर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। सॉल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर बोला तो यूवी एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर होता है। और थर्ड कौन सा था, इवेपोरेटिव डिटेक्टर बोला है, ईएलएसडी होता है। ईएलएसडी यानी क्या होता है, इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर बोलते हैं उसको। अब मोलर मास सेंसिटिव डिटेक्टर के भी टाइप्स है, पहला है लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, ठीक है ना। दूसरा है विस्कोसिटी डिटेक्टर, डिफरेंशियल विस्कोमीटर्स बोलते हैं। अब लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर के दो टाइप है, लो एंगल लाइट स्कैटरिंग, लो एंगल्स लो स्कैटरिंग LALS डिटेक्टर, मल्टी एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, ठीक है ना। विस्कोसिटी डिटेक्टर कौन से होते हैं, डिफरेंशियल विस्कोमीटर्स होते हैं इसमें,
FID करके यूज किया जाता है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, FTIR इसमें यूज किया जाता है, जो IR में यूज किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैन आई assume that you are getting what I am saying? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वही रहेगा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या होगा? फ्रैक्शनेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स का। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन करना है। एग्जाम्पल कैसा है? पॉलीमर सैंपल है, उसको आप मिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट का है, वो फ्लो डाउन होगा कॉलम से, ठीक है ना, उसके बाद में सेपरेशन होगा सॉल्यूट का अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद में जो क्रोमेटोग्राम रहेगा दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द सेपरेशन बेस्ड अपॉन देयर साइज ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है? प्रोटीन बिल्डिंग साइड स्टडीज है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? रिवर्सिबल बाइंडिंग होगा लिगैंड का मैक्रोमोलिक्यूल के साथ में, सच एज द प्रोटीन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द रिसेप्टर प्रोटीन। ध्यान देना, प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, बिल्डिंग में क्या होता है? रिवर्सिबल बाइंडिंग होगा लिगैंड का मैक्रोमोलिक्यूल के साथ में। एग्जाम्पल क्या है? प्रोटीन इंक्लूडिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? सॉल्यूशन जो हायर कॉन्सेंट्रेट मॉलिक्यूलर वेट के रहेंगे उसको आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में यूज करोगे बाय एडिंग ड्राई सेफाडेक्स G5, ठीक है ना। ये यूज करेंगे आप कॉलम, ठीक है ना। कॉलम कौन सा है? सेफाडेक्स। डीसॉल्टिंग करना है तो यूज ऑफ द कॉलम सेफाडेक्स G25। सॉल्यूशन ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डीसॉल्टेड, ठीक है ना। फिर आप सेपरेशन कर सकते हो लार्जर मॉलिक्यूल्स का बायोलॉजिकल ओरिजिन के साथ में फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड द आयोनाइजेबल स्पीसीज का, जिसको अपन डीसॉल्टिंग बोलते हैं। डीसॉल्टिंग में क्या होता है? कॉलम यूज करोगे, कॉलम का नाम क्या है? सेफाडेक्स G25 है, सेफाडेक्स G25। तो सॉल्यूशन जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा उसको आप डीसॉल्ट करोगे, सेपरेशन करोगे किसका? लार्जर मॉलिक्यूल का बायोलॉजिकल ओरिजिन का, फ्रॉम कहां से? इनऑर्गेनिक एंड आयोनाइजेबल स्पीसीज को, उसके वो अपन क्या बोलते हैं? डीसॉल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हाँ, सॉरी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ना एफिनिटी वी हैव गॉन थ्रू। ये समझ में आया ना आपको? आज अपन ने जेल क्रोमेटोग्राफी लिए और साथ में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। आई होप दिस इज इनफ। आई विल टेक योर अटेंडेंस नाउ। आई एम लॉकिंग द सिस्टम।